Hello everyone. We are here with the 7 students who are here to debate on the lockdown protest. And सबसे पहले जो है हम start करेंगे with the introductory part, and then we will take the questions one by one. So, students, how are you? We all are fine, ma'am. Fine. Okay. So first of all, we will start with the Pratyusha. Yes, Pratyusha, give me your introduction. Hello everyone, this is Pratyusha Priyadarshini. I am from Bhubaneswar, Odisha. I am pursuing my +3 second year from Utkal University, Banidhyar. Okay. Yes, Sapna. My name is Sapna Prajapat and I am from Neemuch, Madhya Pradesh. I am in BSc final year. Okay. Yes, Archit. Hello everyone, I am Archit Mishra. I completed my graduation in 2016. Thereafter, I did my post-graduation in law, and then I'm my final semester of my MBA, and with the specialization in financial markets. And meanwhile, I'm also preparing for defense services. My interest is following certain patterns and letting them with the teaching of life, and also love running. Okay, that's good. Yes, Nitesh. Yes, ma'am. Good afternoon, everyone. My name is Niteshwaran and I am from Palampur, Himachal. I completed my graduation from Himachal Pradesh University in BCom Professionals. Okay. Yes, Shubham. Hey guys, I'm Subham Kumar Pandit. I'm from Bihar, and currently I'm pursuing with my BCom. I'm in second year. Apart from that, I was a professional boxer, and I have qualified 3 times for SSB, and automatically I was disqualified in conference out. I was conference out, and currently my target is against CDS and CAPF. Okay, that's good. Yes, Harsh. My name is Harsh Prajapati. I belong to Rajasthan. I currently pursuing BSc Part First. I preparing for defense exam. Okay. And yes, Naman. What about you? Good afternoon, all. My name is Naman Kumar Sahu. I am basically from Dehradun, Uttarakhand, and I am completing my BBA second year from Veer Shahid Kesari Chand College, Dehradun. And currently, I'm preparing for CDS and FCAT examination. Thank you. So now we will proceed with the questions. Okay. So the first question is, as no one was expecting this much long time lockdown, so do you think that government should firstly inform or make some plan so that they can make it possible? Because due to lockdown, there was a number of workers, they go from their working place to their home, so that make an very big issue because lockdown was to prevent from the coronavirus, but it made it like the workers from going from Maharashtra to UP or from other places. So what are your views on this? Yes, firstly, Prityusha. You are not audible. Hello. Yes, now start. Firstly, I want to say that government has made a right decision by making a lockdown within 2 phases because as people can be seen panicking with this 2 phases of lockdown, then we can imagine how much they will panic, like they will be in a hurry and will be so worried if there will be a lockdown constantly 40 days or more than that. So I think it has been made a right decision. And while is talking about migration of the laborers or workers from any state to another, so I think the state governments are cooperating with each other for taking care of each other's people. And I think people can have the patience of getting the lockdown over, and so that they can come to their state respectively. And who is second? Here she can start. Yes, Sapna. I guess she's not there. Yes, Archit, you can start. So yes, Yes, Sapna ma'am. is there. Sorry, I forgot. Yes, Yes, मैम you can start. मैम मेरे ख्याल से जो वर्कर्स जहाँ काम करते हैं उनको वहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो वापस उनके घर को आएंगे तो फिर वापस उनको जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद उनको वापस वहीं जाना पड़ेगा अपने वर्क के लिए।
तो Yes. उससे वापस वो भीड़ वाला माहौल होगा और फिर सरकार को वही प्रॉब्लम होगी जिनसे वो दूर रखना चाहते हैं। तभी कि तो उनको ताकि सरकार को पहले इन्फॉर्म करना चाहिए था ना, बट वो 20 सेकंड को कर्फ्यू लगा एंड उसके बाद लॉकडाउन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। यस मैम, पहले उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया और वो लोग आ गए। अब जो लोग जिनमें समझदारी है वो तो वहीं रुके हैं ना, कि कभी खत्म होगा और उसके बाद वो अपना काम फिर से शुरू कर सकते हैं। Okay. And yes, Archit, what are your views on this? Ma'am, I believe that government did right thing by not informing the citizens that they are going to extend the lockdown period, because let's imagine if there is a situation that any person is infected with that virus, and even if they allow that person to get moved from their one place to their native place, it may infect other people as well to their villages, because as we see that in the metropolitan cities there are much more strictness as compared to the remote areas and the villages inside. So if we assume that that person is allowed to go to the village, it means it the highest possibility is that he will also spread the virus to his among the family members and other people who will meet. Exactly. The same example was also when the government did not told everyone in advance that they are going to extend after 22nd. Yes, Archit, is it audible to you? Ma'am, it's not audible to me. Is it audible to everyone? Okay. Yes, Archit, are you there? There is a network problem. Yes, Shubham, you can start and then we'll come to the Archit. मैम व्हाट आई थिंक कि लॉकडाउन जो था वो 80% अनसक्सेसफुल रहा एंड 20% इट वाज सक्सेसफुल बिकॉज मैम सिंस द गवर्नमेंट हैज टेकन इनिशिएटिव टू लॉकडाउन, उसके पहले उन्होंने कोई सूचना नहीं दिया। एज अ रिजल्ट जो पुअर लेबरर्स है उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें खाना या फिर जो बेसिक नेसेसिटी की चीज़ें हैं वो मिल नहीं पा रही हैं। अनदर पॉइंट मैम कि व्हाट आई थिंक जो गवर्नमेंट स्कीम्स ले रही है, जैसे मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कीम्स लाइक 500 रुपीज टू 800 रुपीज दे आर पेइंग लाइक इन एवरी वन अकाउंट, like in Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, I think so. So ma'am, what the government would have done is that मैम उस पैसे को एक अच्छे जगह इस्तेमाल किया होता और उसके बदले उन्होंने अगले का मीन्स व्हेनेवर द लॉकडाउन फिनिश मैम एक टिकट दे देता हर एक लोग। इसका नतीजा ये होता है मैम कि ज़्यादा हौच पौच नहीं होता, बहुत ज़्यादा ट्रेन या फिर बसेज में क्राउड नहीं होती मैम। मतलब कि जेन्युइनली हम लोग ये लॉकडाउन किए क्यों है, क्योंकि हमें वायरस से बचना है। और अगर उसके दौरान फिर भीड़ हो जाएगी, व्हाट आई मीन टू से, हमें भीड़ से बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, तो मैम अगर भीड़ हो जाएगी तो फिर तो वही होगा, देयर विल बी नो रिजल्ट। एंड अनदर पॉइंट मैम, देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द पीपल। और सब कुछ जानते हुए भी they are continuously moving, especially in metropolitan areas. The government has already informed that there will be a lockdown and we have to avoid maximum locomotion. हम लोग को इधर उधर बार बार जाना नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो पुअर वर्कर्स हैं, हालांकि गवर्नमेंट ने खाना वगैरह सब कुछ दे रहा है, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग बेसिक नेसेसिटी, इसके बावजूद भी वो लोग फिर से वापस वहीं अपना पैदल या फिर बाई यूजिंग देयर बाईसाइकिल एंड ऑल दे आर कमिंग टू होम। और फिर ये जानते हुए भी मैम कि वापस उसी जगह जाना है, तो फिर मैम इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। मैम रिगार्डिंग 20% ऑफ सक्सेस, आई वुड लाइक टू से मैम जितना एक्सपेक्टेड था WHO के रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी कम केसेस हैं, काफ़ी सिचुएशन अभी भी मैक्सिमम एरियाज में कंट्रोल में है। सो ये बेनिफिट्स है। इसके अलावा द डॉक्टर एंड द पुलिस आर परफॉर्मिंग वेल देयर ड्यूटीज। सो I think there will be about 20% is successful and 80% is unsuccessful, the plan of lockdown. That's it. Yes, Archit, now you can complete your point. Yes, ma'am. There might be some internet error. I apologize for the inconvenience. What I was saying is that government should not announce preemptively
like they are going to extend the lockdown because of the preventive measures that they are planning to take by improving the social gathering and social in distancing. Because when we are tackling that problem of migrant workers, that they do not have enough sufficient food and shelter facility, for which many state government chief ministers have also stated that Ma'am, they I are have a taking question. care of their citizens from other states, and you can take care of your citizen and we are taking of your. It's like the vice versa situation. For example, Mumbai CM stated that they are taking care of the Bihar citizens, and the Bihar CM can take care of the Mumbai citizens. So that with this mechanism, they can also eradicate that shelter and Ma'am, I food, have a question. and I have social a question, distancing Mr. can also be made. Your turn, Shubham. Yes, and with Ma'am, this measure, the मैम social आई हैव अ distancing क्वेश्चन problem एंड आई can वुड also be लाइक टू राइट विथ अर्चित। जहाँ तक हमें अर्चित लगता है कि जब लॉकडाउन हुआ तो अभी लगभग 1 महीने के आसपास हुआ है, और जो पीपल हैं, जो लोग हैं, वो जो बाहर के स्टेट में काम कर रहे हैं, उसके जगह वो लोग अपने होम स्टेट में भी तो काम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा, जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने इतना ज़्यादा अर्न नहीं किया हुआ है, उन्होंने इतना अर्न नहीं किया कि 1 महीने तक अपना खर्च उठा सके, तो उससे बेहतर है उन्हें अपने जी स्टेट जॉब में, हाँ, गवर्नमेंट मनरेगा ये जॉब मैं आपकी वगैरह प्रीफर प्रॉब्लम, कर हाँ सकती है। ये मैं समझ गया, उन्होंने अर्न नहीं करा बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि डेली वेजर थे, जिनको डेली का दिहाड़ी, जिनको हम देसी वर्ड में बोलते हैं, उनको तो हाँ, यस so they were daily in wages. other states, So in home, yes, excuse me, Archit, let me speak. In home state also government provide assure employment regarding that. So there was no need to go outside of that. I think so, and many of you must be agree. Let Archit complete his point. yes, that I know. Government has failed his promise to give employment opportunities in their particular state. That's why the people moved from one state to another state to get employment. But that is not the concern. The concern is how to to defer this COVID-19 disease. अगर आप बात कर रहे हैं जो आपकी जनता को आपके दूसरे स्टेट में रोक रखा है, तो उसको करने के लिए उन्होंने जो उनको मंथली उनको फूड एंड शेल्टर जो भी उनका प्रोवाइड किया जा रहा है, 500 रुपीज़ पर पर्सन उनके अकाउंट में दिया जा रहा है, जनधन अकाउंट के थ्रू उनके में दिया जा रहा है, किसानों को जो दिया जा रहा है राशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन इज ऑल्सो बीइंग गिवन टू द पीपल। सर गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बताया ना कि आप दूसरे स्टेट में जाकर जॉब करो। अब आप फंसे हुए हो, अब आप एक एग्जांपल ले लो, आप कहीं गए हो, आपके जेब में पैसे नहीं है, तो उसमें सरकार को आप नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते। यू कांट मेक गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट बिकॉज गवर्नमेंट हैज नॉट फोर्स्ड यू टू ज्वाइन द जॉब एट दैट प्लेस, राइट? And regarding COVID-19, I would like to add one thing. बार बार अच्छा वे लोग वहां पर हैं, तो क्या COVID-19 के रिजल्ट में कमी आ रही है क्या? Is there any result decreasing? नहीं, मैक्सिमम जगह रेट डिक्रीजिंग रेट पर है। That can be a very big number. Like in US, that is around 8 lakh, but I think that number can be a big. मैम स्टार्टिंग में, मैम लेट मी स्पीक, मैम स्टार्टिंग में जितने केसेस थे वो लगभग अभी से लेकर के 8 दिन में केसेस डबल हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू द सर्वे। और वो मैं कंट्रीज की बात नहीं करना चाहूँगा, मैं आई एम करेंटली व्हाट वी से इंडिया के बारे में बात करना चाहूँगा। जब सरकार इतनी सख्ती के साथ लॉकडाउन कर रही है, तो फिर COVID-19 के केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर उसके आप सिम्टम्स देखिएगा तो वो तो फैलने वाली बीमारी है। क्योंकि रूट लेवल पर अभी भी स्ट्रिक्टनेस इंप्लीमेंटेड नहीं है, रूट लेवल पर अभी भी बहुत फ्लॉज हैं, लूप होल्स हैं। Who is responsible for that? And अगर वो स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर भी रहे हैं, तो पीपल आर नॉट अवेयर। अब जो एजुकेटेड नहीं है वो न्यूज नहीं सुन रहे हैं। और रिगार्डिंग दैट आल्सो आई हैव आइडिया। मैम जो छोटे स्तर पे सरकार है, जैसे शहरों के लिए वार्ड है, विलेज के लिए ग्राम पंचायत सरपंच है, मैम दे शुड टेक इनिशिएटिव रिगार्डिंग दैट एंड दे कैन मेक अवेयर with the debate and we should take the points of others, because ऐसे जो है उनके भी points ले लेते हैं, and then we'll continue the debate. And yes, who is next? Excuse me, ma'am, I have a question, ma'am. Yes, Naman. मैम as शुभम said कि हमारी गवर्नमेंट ने ये जो लॉकडाउन है इतनी तेजी से क्यों एक्सटेंड कर दिया, या फिर इसको इतना हार्डली क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि अगर हम देखे जाए, कभी सोचा कि इंडिया के अंदर ये लॉकडाउन को एज अ इमरजेंसी क्यों देखा जा रहा है? ये इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हमारे देश की जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो एकदम खोखली है। सारी यूथ इंजीनियर या फिर ये सब बनने में लगी हुई है, लेकिन बट डॉक्टर्स बहुत कम है इंडिया के अंदर।
और अगर गलती से भी नंबर बढ़ा तो शायद सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी और इटली से भी ज्यादा बुरे हाल हो सकते हैं इंडिया के। लिसन ब्रदर, इटली और अमेरिका में भी, इटली एंड चाइना वगैरह में भी लॉकडाउन let me complete the Gaurav's and Nitesh's point also, and then we'll come to you. Okay, please wait. I guess Gaurav, what is your views on this? Listen, first of all, if anybody want ask me that is lockdown is constitutional or unconstitutional, it is totally unconstitutional lockdown, because the lockdown which was implemented in India was under National Disaster Management Act 2005. In that act there is no clearly mentioned that the union government can put nationwide lockdown at a time. It is not, if government want to lock down the whole country, then why did government not put emergency? अगर गवर्नमेंट इमरजेंसी लगाती तो गवर्नमेंट की एक छवि पर बहुत बड़ा इफेक्ट करता है, इसलिए उन्होंने इस एक्ट की आड़ में आगे ये लॉकडाउन किया, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिले हैं। स्टारवेशन, मास अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है, पॉवर्टी देखने को मिल रही है आगे फ्यूचर में, और more than 500 people died due to starvation in last 1 month. Okay, so future इसके impact बहुत ही worst होंगे, you mean to say? Yes, ma'am. I guess Nitesh. Yes, ma'am. Am I audible? Yes. ओके मैम, फर्स्टली आई एम टोटली एग्री विद शुभम्स पॉइंट। जैसे कि उसने बताया कि इंडिया में जो लॉकडाउन की स्थिति बनी उसका 80% नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा, पर 20% पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। क्योंकि अगर 80% इम्पैक्ट में, अगर जैसे कि उसने बताया, मुझे हम सबको बताया कि लॉकडाउन के बारे में मोदी जी ने पहले नहीं बताया था, एकदम से लॉकडाउन इंडिया में हुआ तो जितने भी लेबरर्स थे, मजदूर थे, सारे एक तरह से डर गए, उनको समझ नहीं आया कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं, और सब जगह फिर अपने अपने घर भागने की स्थिति में आ गए। क्योंकि जैसे कि अगर दिल्ली में और मुंबई में देखें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार के लोग थे, जो सब के सब मजदूर थे, और उनको जितना ज़्यादा अपने घर को जाने का था, पर सरकार ने ये बोला होता कि जो जहाँ भी है, जिस स्थान है, वो वहीं पे अपने जगह, अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करके रखे। बट लोगों ने नहीं माना और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना पड़ा कि आज 28,000 केसेस बढ़ गए हैं इंडिया में, और इसका सबसे ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट गरीब लोगों पर पड़ रहा है। जिससे अगर हम देखें, इंडिया में 50 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं, जिनको ज़्यादा राशन नहीं मिलता, कुछ खाने को नहीं मिलता, पर सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है उनको रोज़ के रोज़ खाना देने की। पर एक तरह से उनको नेगेटिव इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि उनके पास पैसा नहीं आ रहा। पहला पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा। Yes, yes, Harsh, what are your views? I am audible, ma'am? Yes. यस, जैसे नितेश भाई ने बताया कि रिच या मिडिल क्लास की फैमिली, उनके पास तो अभी तक खाने पीने का सामान है, उनके पास तो स्टॉक है। लेकिन जो पुअर या गरीब जो लोग हैं, उनके पास, जो अन्य स्टेट में या वर्क कर रहे हैं, जो जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, उनके पास तो इसका बुरा असर पड़ा ही है। लेकिन हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उनकी एक इमेज बनी है कि उनको, उनके गरीबों को खाना दे के या फिर उनकी सहायता प्रदान करने से लोगों में उनकी इमेज तो बनी है। Okay. Yes, anyone want to say anything on this point? Yes, Naman. Ma'am, am I audible? Yes, yes. मैम, जहाँ पे मैंने बात छोड़ी थी मैं वहीं से शुरू करूंगा कि अगर हमने 80% फेलियर देखा है, जो मेरे हिसाब से नहीं है। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर 4 स्टेट्स कोरोना फ्री हो चुके हैं, इंक्लूडिंग गोवा, त्रिपुरा, सिक्किम एंड वन मोर स्टेट विच आई डोंट नो नेम, आई एम सो सॉरी। बट ये पॉसिबल हुआ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्शंस पहले ही ले लिए, बट जो एक्शन हमने लिए वो सही थे, पर उसको अप्रोच करने का तरीका गलत था। जैसे अभी हर्ष प्रजापति ने कहा कि पुलिस की इमेज बनी है, वो खाना दे रही है, बहुत अच्छी बात है। पर जैसा पुलिस का बिहेवियर है नॉर्मल पब्लिक के साथ, आप अगर एक स्प्रिंग को कंटिन्यूसली प्रेस करोगे तो वो भी रिटेलिकेट करेगा, बाहर उठकर आएगा।
अगर आप इतने स्ट्रिक्ट रहोगे जनरल पब्लिक के साथ कि आप एक 80 साल की औरत को डंडों से पीटो सड़क के अंदर, तो शायद कोई भी फॉलो नहीं करेगा इस लॉकडाउन को। लेकिन 80 साल की औरत पत्थर मारे वो तो चलेगा, अगर वो लठ मारे तो यू हैव अ प्रॉब्लम, बट अगर वो पत्थर मारे तो इट्स ओके। व्हाट डू यू भाई वांट टू से? पत्थर कहाँ मारे? अब इंसान अब राशन लेने के घर के बाहर नहीं जाएगा। अब उसके लिए सरकार बार अभी बार हल्ला किए पड़ी है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन yes, करो, और what उसी are का your आप points, ब्रेक Gaurav? करके आप वहाँ भीड़ लगा Right लेते now हो। you're talking about कि राशन नहीं मिल रहा है गरीबों को, अब उनको You खाना can लेने take पड़ेगा ना। you can take एग्जांपल ऑफ पटना का आप एग्जांपल ले लो, वहाँ पे तो भीड़ लगा था, सरकार सोशल डिस्टेंसिंग बोले पड़ी है, वहाँ भीड़ लगी हुई है, तो उस केस में आप रहते तो व्हाट वुड हैव बीन योर स्टेप? वुड यू लाइक टू फोकस ऑन दैट? आप क्या करते? Yes, Gaurav? सिचुएशन जब वर्स हो जाएगी तो जरूरी नहीं भाई हर बात का जवाब डंडा ही हो, बातों से भी बात हो सकती है। तो सारी पुलिस डंडे नहीं मार रही है, आप ये भी बस उनको मजबूर किया जा रहा है यार भाई। Shubham, please wait. Yes, Gaurav, complete your point. जैसे शुभम बोल रहा है कि 80 साल की और डंडा मारे, also a police officer and I am a big critic of police. अगर हम लगातार देख रहे हैं, मैं फील्ड में वर्क करता हूँ डेली टू डिस्ट्रीब्यूट फूड टू द माइग्रेंट वर्कर्स और अनदर हु आर नॉट अफोर्ड एट दिस टाइम। तो भाई शुभम, अगर खाना नहीं मिलेगा, हमें तो केस बांद्रा में देखने को मिला, गुजरात सूरत में देखने को मिला और जगह जगह देखने को मिल रहा है कि दिन में एक बार भी खाना नहीं मिल रहा है लोगों को, तो डंडा नहीं पत्थर नहीं ना उनको वहां से निकलने दिया जा रहा है अपने घर की तरफ, तो डंडा पत्थर नहीं मतलब क्या करें? ये था कि अगर पुलिस जो है उनको मार रही है, तो जैसा कि हमें देखने को मिला है कि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनके ऊपर वार किया गया है, उनको बचाने के लिए जा रहे थे, तो उनको उन्होंने जो है, आई थिंक हिज पॉइंट इज दैट उनके लिए तो मैंने कानून बन चुका अलग से। यहाँ ये 80 साल की अभी उसके पहले लगातार भूख से अभी ये 2-3 दिन पहले बना, आई थिंक खाना नहीं मिल पा रहा है। आई थिंक ये 2-3 दिन पहले बना, उसके पहले जब वो तबलीगी जमात वाले लोग देवर स्पीकिंग एंड ऑल, उसके बाद ये बना, उसके पहले ये कानून क्यों नहीं बना? जब अरेस्ट हुए उस समय ये कानून क्यों उससे पहले शायद जरूरत ही नहीं पड़ी। सिचुएशन No, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि इतनी जल्दी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, दैट इज बिग थिंग आई थिंक, कि उसके लिए हमें बहुत सालों तक वेट नहीं करना पड़ा। हाँ, यस मैम वो तो इमीडिएट एक्शन था मैम, वो तो इमीडिएट एक्शन था, दैट वुड हैव टू बी टेकन, वो तो लेना ही था, क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरह से वो लोग बिहेव कर रहे थे डॉक्टर्स के साथ या फिर पुलिस के साथ या फिर दूसरे ऑफिसर के साथ, मैम दैट स्टेप इज शुड हैव सही लिया गया, बहुत बढ़िया किया गया, आई अप्रिशिएट दैट पॉइंट। लेकिन मैम मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब था कि स्टार्टिंग फेज में जब जमात वाले लोग धीरे धीरे पकड़े जा रहे थे, लाइक वो क्या कहते हैं, दिल्ली में पकड़े गए, फिर अलग अलग जगहों पे पकड़े गए, उसके बाद जो मिसबिहेव किए, उसी समय गवर्नमेंट ने तुरंत लॉ क्यों नहीं बनाया? इतना मतलब कि ज्यादा टाइम तो नहीं लिया, लेकिन फिर भी अबाउट 14 to 15 डेज का टाइम Yes, दिया Gaurav, उन्होंने। complete your point. Yes, please wait. Gaurav will give the answer. जैसे शुभम बता रहा है कि लगातार मिसबिहेव होता था जमात वालों के खिलाफ, एक मैडम एक मीडिया का हिस्सा भी लगातार इसको कवर कर रहा था, ये दिखाने के लिए एक कम्युनिटी के लोगों को टारगेट किया जा रहा था, और अब वही कम्युनिटी के लोग जो लगातार प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं उसको कोई नहीं दिखा रहा है। एक नेगेटिव छवि दिखाने के लिए लगातार एक एजेंट प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है मीडिया में, जिसकी पूरे देश में गलत छवि गई है। तो अकेले तबलीगी जमात वालों ने हरियाणा में फरीदाबाद और बहुत सारे ऐसे केस हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम लोगों ने भी पुलिस पे अटैक किया है और डॉक्टर्स पे अटैक किया है। तो केवल हम एक कम्युनिटी और एक Yes, anybody else? Yes, Yes, Archie. Ma'am, yes. Let's not deviate from the topic, that is side effects of the lockdown. The lockdown has a very adverse effect on our economy, on infrastructure, on employment, on overall economy, GDP, poverty, on everything. And I might sound funny, but the corporates are conducting happiness session over video conferencing. See, the morale and the anxiety and the stress attack also been occurring due to this COVID-19. And my next question is also that कि due to this lockdown जो mentally लोग disturb हो रहे हैं या उनको घर पे रहना is a very big thing, क्योंकि उनको बाहर निकलने की आदत होती है, काम पे जाने की आदत होती है, तो इससे क्या न्यू मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं? Exactly. And इससे
कौन कौन से जो साइकेट्रीज या फिर आप देख सकते हो कि मेंटली क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है राइज हो सकती है? यस मैम, इकोनॉमिक एंड जो भी आपके अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो तो फिर भी गवर्नमेंट के काउंटर एक्टिव मेजर्स से उसको इरेडिकेट किया जा सकता है, बट व्हाट अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड द मेंटल प्रॉब्लम? तो उनके लिए साइकोलॉजिस्ट जैसे अपॉइंट किए जा रहे अब जो कंपनीज हैं वो अपनी प्रोडक्शन पर नहीं, अपने साइकोलॉजिकल सेशंस पर, अपने एम्प्लॉयज़ के वेलबींग के ऊपर अब उनका फोकस शिफ्ट हो गया है। सो उसका लॉकडाउन का एक दूसरा साइड इफेक्ट ये भी है कि वो एम्प्लॉय को मेंटल लेवल पर इफेक्ट कर रहा है, तो इसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए आपके साइड इफेक्ट के कोविड-19 के लॉकडाउन के। मैम पॉजिटिव इम्पैक्ट तो आप जैसे बोला आपने, मैम पॉजिटिव इम्पैक्ट इसका ये भी है कि आप कोरोना फ्री हो, बाहर निकलोगे तो कोरोना पकड़ लेगा, एंड ये तो पॉजिटिव पॉइंट है। और नेगेटिव पॉइंट तो मैम हर चीज का पॉजिटिव। ओके शुभम, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। यस प्रत्युषा। मैम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो जैसे कि देखा जाए कि अभी सभी लोग घर पे बंद हैं, सभी अपने फैमिलीज के साथ रहते हैं, और ऐसा कोई मतलब नहीं है कि सारे फैमिलीज जो होते हैं हैप्पी फैमिलीज होते हैं, because I have personally seen many type of domestic violence right around me. So ये जो होता है कि अगर स्टूडेंट्स की बात देखा जाए तो वो अभी एक टाइप के रिलैक्स्ड हो चुके हैं, मतलब के प्रैक्टिस्ड हो चुके हैं कि हाँ हम तो घर पे रहते हैं, हमारा फिर भी मजा है। लेकिन जो हाउसवाइफ्स होते हैं या और जो उनके जो हस्बैंड्स होते हैं, अगर उन्हें मार रहे होते हैं या फिर डोमेस्टिक वायलेंस जो कि हम आसान शब्दों में कहें, तो उसके चलते वो जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे ख्याल से अभी तक। ना डबल ट्रिपल होते जा रहे हैं ड्यू टू दिस लॉकडाउन। आई एम सॉरी मैम, डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस है ना वो डबल टू ट्रिपल होते जा रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। यस मैम, ओनली डोमेस्टिक वायलेंस ही नहीं बट चाइल्ड अब्यूज की बात देखें या बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोशल लेवल के नाम से जो हम जानते हैं वो अभी बहुत बढ़ते जाते हैं आज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। सो आई थिंक इस चीज़ का अगर कोई सॉल्यूशन निकल सके तो बस यही है, नहीं तो बाकी सब ठीक ही है। यस सपना, व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? मैम इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ है कि लोग पहले पार्क में जाते थे, जिम में जाते थे, घूमने जाते थे, एक्सरसाइज करते थे अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए, तो ऐसा अभी नहीं हो पा रहा है। तो वो लोग सभी अभी घर पे ही योगा स्टार्ट हो गया है कई लोग कई घरों में, और एक्सरसाइज करने लगे हैं ताकि अपने आप को फिजिकली फिट भी रख सकें और स्ट्रेस फ्री भी रह सकें और पूरा दिन अच्छे से स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो they can spend time with their families. Yes, ma'am. एक और पॉजिटिव पॉइंट है मैम, देयर इज वन मोर पॉजिटिव पॉइंट रिगार्डिंग द लॉकडाउन मैम, नेचर इज रिकवरिंग मैम। जो पोल्यूशन रेट्स थे उसमें काफी कमी आई है हर जगह मैम। आप दिल्ली मुंबई के लोग भी लाइक आसमान में तारे वगैरह देख सकते हैं। दैट वन मोर पॉजिटिव पॉइंट रिगार्डिंग लॉकडाउन। Yes. Yes, Ritesh. Yes ma'am, am I audible? Yes, yes. ओके मैम फर्स्टली तो जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च 21 दिन का लॉकडाउन किया था तो मैम तो जो भी बाकी कांग्रेस के लोग थे तो उन्होंने इस इनिशिएटिव को बेस्ट मूव कहा था, पर जैसा कि बाकी बोल रहे हैं कि ये इससे नेचर को अच्छा हुआ, ये क्वेश्चन का पहले आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि लोगों पर इसका क्या असर पड़ा है, पॉजिटिव पड़ा है कि नेगेटिव पड़ा है। एक तरह से अगर स्टूडेंट्स की लिए बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है क्योंकि जैसे अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए, और जैसे स्कूल के बच्चे भी हैं यस मैम उनके लिए मैम थोड़ा सा प्रॉब्लम तो क्रिएट तो हुआ ही हुआ है, बट ये है कि जैसे अगर देखा जाए कि कुछ स्कूल्स ने ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट कर दी हैं तो उनके लिए भी अच्छी बात हो गई है। बट अगर कि जैसे प्रत्युषा ने कहा कि कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आ रहे हैं, मैं उससे तो इंडिया में इम्पैक्ट पड़े क्योंकि अभी जितना भी देखें तो लास्ट वीक से तो काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं इसके डोमेस्टिक वायलेंस के, तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से इम्पैक्ट पड़ रहा है। Yes, Gaurav.
मेरे हिसाब से नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा। लॉकडाउन अगर पॉजिटिव होता तो एज सो कॉल्ड एक्सपर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ 24 तारीख को, उस दिन प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ बोला था 21 दिन में वायरस की चैन टूट जाएगी। वो आज तक तो लगता हो चैन और ज़्यादा होगी, टूटती तो नहीं है। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इटली का ले लो, इटली में भी लॉकडाउन है, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ है पिछले 2-2.5 महीने से। और वहाँ भी लगातार केस बढ़ रहे हैं। अब अकेले लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर साउथ कोरिया का एग्जाम्पल ले, जापान का एग्जाम्पल ले, वहाँ पे कोई लॉकडाउन नहीं लगाया, बस टेस्टिंग को फास्ट किया था। उसी की वजह से उन्होंने अपन जो कंट्रोल किया है कोरोना वायरस को, सबसे बड़ी बात है जो साउथ कोरिया और जापान ने कंट्रोल किया है। लेकिन हमारे देश में केवल 10 लाख पे केवल 300 ही टेस्ट हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी कंट्री का। यस नमन। मैम अगर मेरे हिसाब से देखा जाए कि अगर एक इंडिविजुअल को देखें तो उसके लिए लॉकडाउन पॉजिटिव ही है, क्योंकि जब एक हिस्ट्री कहती है मैम, हमारे सर आइजैक न्यूटन थे, उन्होंने ग्रेविटी ढूंढ ली थी 1820 के प्लाक एपिडेमिक में। अगर इंसान चाहे तो इसी टाइम पर प्रोडक्टिव बना सकता है कि वो अपने आप में से एक परफेक्ट बीइंग बाहर निकाल के ला सकता है। बट हम इस टाइम अगर यूज करेंगे तभी होगा, खुद पर ध्यान देंगे तो। बिल्कुल, अगर हम से करना पड़ेगा। ग्रुप की बात करें तो ग्रुप पे तो ऑब्वियसली मैम नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा, क्योंकि सबकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि जो उनकी सैलरीज है सब खत्म पड़ी है। जो डेली वेजेस वर्कर स्पेशली जो इधर उधर नहीं जा पा रहे हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट भले ही 500 रुपए उनको दे दे, पर 500 रुपए से टू बी वेरी ऑनेस्ट आज के टाइम पे कुछ नहीं हो सकता। तो वो तो नेगेटिव इम्पैक्ट है ही। इस सिचुएशन में पूरे देश को बस एक साथ ही रहना है, और अगर हम लोगों ने फॉलो किया, अगर हम दूरी रहे, क्योंकि मैम हमारे देश की फैसिलिटी सही में बहुत खराब है। अगर एक एरिया के अंदर 100 केसेस भी आ गए, आई मीन 100 to 500 केसेस भी आ गए, तो भी एक हॉस्पिटल डील नहीं कर सकता उन 500 केसेस से एक साथ, क्योंकि डॉक्टर्स ही नहीं है हमारे देश में इतने। तो ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है कि वो घर पे बैठे। यहाँ पे गवर्नमेंट को कोई रोल नहीं है, गवर्नमेंट तुम्हें बस रोक सकती है। बिल्कुल, अभी हम उस स्टेज पे हैं कि इस चीज को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। वो चेन जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगी। यस, एक इंडिविजुअल को खुद स्टेप लेना पड़ेगा, तभी ये एपिडेमिक रुकेगा, वरना शायद नहीं रुके। राइट। यस हर्ष। एक मैम इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी मिला है कि जो लोग अब बाहर काम कर रहे थे, जो अपने परिवार के साथ वक्त नहीं गुजार पाए, उनसे बात भी नहीं कर रहे थे, या वो अभी अपने माता पिता से मिल रहे हैं, उनके साथ रह रहे हैं। फैमिली डिस्टेंस जो था ज्यादा हो चुका था। हाँ वो भी है। और मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि जो डिफेंस एग्जाम हो रहे हैं, वो जो नेवी एयरफोर्स के हैं, वो अभी नहीं हो रहे, वो उसको रिशेड्यूल कर दिया गया है, मतलब नेक्स्ट एग्जाम में। तो क्या जिसकी लास्ट एज थी उसको वापस मौका मिल पाएगा? बिल्कुल, देखो रीशेड्यूल अगर हुआ है तो मौका तो सभी को मिलेगा, ऑब्वियस है वो तो। दैट इज द थिंग। यस अर्चित। यस मैम, एजुकेशन पॉइंट से जैसा कि कहा कि ये पॉजिटिव है, तो मैं कहूँगा कि एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये 0% पॉजिटिव है। ये अदर एस्पेक्ट्स में मैं कह सकता हूँ कि पॉजिटिव, बट एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आप कह रहे हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल रहा है। सेल्फ प्रिपरेशन तो अब आप आपके पास लेजर टाइम है तो आप सेल्फ प्रिपेयर करेंगे, बट पढ़ाई के अगर हम बात करें तो इनिशियल स्टेप होता है एजुकेशन। जब एजुकेशन इम्पार्ट की जाती है, एजुकेशन कंप्लीट कर दी जाती है, उसके बाद आपका रिवीजन एंड सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट होता है। जब एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, 12th क्लास के बोर्ड्स के एग्जाम अभी पेंडिंग है, मेरे एग्जाम पेंडिंग है। अगर आप मेरा एग्जांपल लेते हैं, इन मे मंथ आई वाज अबाउट टू बी अगेन पोस्ट ग्रेजुएटेड, बट अभी मे में और लॉकडाउन एक्सटेंड होगा एज वी ऑल नो। तो यहाँ पर आपका एजुकेशन का एक फ्लो देखते हैं, और ये फ्लो एक चेन में कंप्लीट होगा। अगर आपका ग्रेजुएशन लेट होगा, आपकी जॉब पे इफेक्ट पड़ेगा, आपकी कंट्री की इकोनॉमी भी, हर चीज़ आगे आगे थोड़ा थोड़ा और डिले होती जाएगी। 6 to 8 months एग्जैक्टली आपका हर सेक्टर इफेक्ट करेगा इस वजह से। तो एजुकेशन तो टोटली इफेक्ट कर रहा है, इस पर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। एजुकेशन में आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस के नाम पर। वो तो अजित ये एक वो है ना कि हम उस चीज को, वो तो आ गया है अभी। अगर हम एजुकेशन सिस्टम को अगर आगे नहीं कंटिन्यू कर पाते तो वी आर हैविंग द डिफरेंट आइडिया कि हम कुछ इन्वेंशन कर सकते हैं। जितना एजुकेशन हमें मिल चुका है उसका यूटिलाइज करके हम आगे कुछ ऐसा इन्वेंट कर सकते हैं उस नॉलेज को यूज करके, क्योंकि दिस इज अ फ्री टाइम। आप कुछ भी जो है सोच सकते हो। व्हाट अबाउट दोस हुज डिग्रीज हाफ स्टक, जिनके
4 एग्जाम्स हो गए, 4 एग्जाम होने को हैं, कौन सा वो नया कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं? वही तो दिस इज द थिंग कि वो तो हम या तो ये कर सकते हैं या उन्हीं के बारे में सोचते रहे कि 4 एग्जाम्स हमारे रह गए हैं। ठीक है, एग्जाम इज व्हाट, एग्जाम हम तब देते हैं जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है एंड दैट इज अ टेस्ट कि आपने जो पढ़ा है क्या वो आपको आ गया है। डेफिनेटली ये होता है ना। तो इन दैट वे अगर हम उसी को पॉजिटिव लेके चले, जितना हमने पढ़ा है उसी में हम और क्या बेटर कर सकते हैं, पिछला कैसे रिवाइज कर सकते हैं, या न्यू इन्वेंशंस क्या हो सकती है जो हमें टाइमली कॉलेज स्कूल टाइम में नहीं मिलती है। अगर इससे मूव ऑन करके दूसरा अगर कोई नए स्टार्ट करते हैं, फ्रेश स्टार्ट करते हैं, तो भी मैम फिर ये 3 to 5 इयर्स की जो आपकी जर्नी होगी एजुकेशन की वो एकदम बेसलेस हो जाएगी, बिकॉज यू वोंट बी हैविंग एनी डिग्री। एडिशन टू दैट हम कुछ एक्स्ट्रा सीख सकते हैं, हमें स्ट्रीम चेंज So नहीं that करना। is the former thing will get totally in vain, I guess. Yes, anybody who want to give yes, Naman, and I think मैं Gaurav। जैसा अभी अर्चित भाई ने कहा कि हमारी डिग्रीज हाफ स्टक है, मैं भी अभी बीबीए 4th सेम में और मेरे भी एग्जाम सब रुका हुआ है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम है कि जो मेरे पास बाकी के बचे पेपर्स है ना, मैं उनको थोरोली रिवाइज कर सकता हूँ, थोरोली पढ़ सकता हूँ, और अगर मैंने वो पेपर्स कंप्लीट कर लिए मैं उसका रिवीजन भी कर सकता हूँ, आगे की प्रिपरेशन भी शुरू कर सकता हूँ। जो भी पढ़ा हुआ है या जो भी आप लॉकडाउन में पढ़ रहे हो वो कभी वेस्ट नहीं जाता। लर्निंग नेवर गो इन वेन। That is not the same case with every student, ना। वो तो तुम्हें डिग्री मिलेगी ही मिलेगी मेरे भाई। उन्होंने I'm talking at the context of whole India level. होल इंडिया लेवल की बात करते हैं तो हर जगह पर इंटरनेट रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, हर किसी के लिए इतने एजुकेटर्स अवेलेबल नहीं है, हर किसी का माइंड इतना डेवलप नहीं है। एट द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया लेवल की बात करूं अगर Right. That depend on individual, but instead of that, yes, Gaurav, complete your point. हम जैसे बच्चे हैं जिनका जो कोर्स ऑनलाइन ज्वाइन किए हैं, जिनका मतलब जिनका स्टडी पॉइंट ही एक ऑनलाइन स्टडी है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जो एक जो मेजर पोर्शन हमारे देश का वो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या ऐसे कॉलेज में पढ़ता है जिनके पास ना वो कॉलेज ना तो प्रोवाइड ऑनलाइन स्टडी प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, और गवर्नमेंट स्कूल की तो बात कहना है क्या उनका, तो वो तो करवाएगी क्या, तो फिजिकल स्टडी प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, ऑनलाइन तो तब करवा पाएंगे। तो सबसे ज्यादा नुकसान। Yes. Is it audible to you, Gaurav? Yes, ma'am. Yes, Shubham, you want to say anything on this? Wait. You are not audible, Shubham. आपने म्यूट किया हुआ है शायद। Now audible, yes. हाँ, yes, now start. मैम एक्चुअली मैम आई अग्री, और जो स्कूल्स इनिशिएटिव ले रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट पूरा बेस तो तैयार नहीं हो सकता है, लेकिन जो बेसिक एजुकेशन है रिगार्डिंग अप टिल प्राइमरी स्कूल या फिर अप टू क्लास 8-9 तक की बात करें तो वहाँ पर भी बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मैम अगर हम मेरी बात करें, इफ यू टेक माई एग्जाम्पल, मैं खुद इसके पहले कभी ऑनलाइन स्टडी नहीं किया, बट आई एम गेटिंग अनअकैडमी एज ए प्लेटफॉर्म which is quite interesting and providing best content which I feel. So मैम ये तो हमें लगता है ये तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है लॉकडाउन का, हमें टाइम मिल रहा है पढ़ने के लिए। इसके बाद हमारे एग्जाम के डेट भी पोस्टपोन्ड हो गए, जिसके कारण हमें और प्रिपरेशन के टाइम मिलेंगे, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैम रिवीजन। और उसके अलावा उसी समय मैम कुछ एक्स्ट्रा अपने आप में को करिकुलर एक्टिविटीज करने का भी ज़्यादा टाइम मिल रहा है। जैसे कभी हमने क्या टीचर दे रहा है स्कूल से, वो व्हाट्सएप के थ्रू बच्चों तक आ रहा है, तो अभी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं इंटरनेट पे, उसको यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल बच्चों का इंक्रीज करेगा दैन कि टीचर ने जो बता दिया वो उसी पे स्टिक रहते थे। यस मैम, आई एग्री। एंड मैम ये जरूरी नहीं है कि सारे जो क्या टीचर्स हैं वो व्हाट्सएप पढ़ा रहे हैं, सम ऑफ देम आर यूजिंग ऐप, सम लाइक जूम ऐप कोई है, दे आर यूजिंग फॉर दैट रिगार्डिंग टीचिंग पर्पज। So I think, ma'am, they are taking great initiative regarding education, I think. Okay. Yes, anybody else want to say anything? Okay. Yes, ma'am. Ma'am, last but not least, I have one more question. Yes. Ma'am, can anyone tell me the positive effect of lockdown on Indian economy? कोई positive effect भी है?
Anybody? नेगेटिव तो हमने पूरे डिबेट में हमने देखा कि सब लोगों ने इकोनॉमी में निगेटिविटी की बात की है। Yes. मैम क्या इसी कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी है क्या लॉकडाउन के? Yes. पॉजिटिव इफेक्ट? You can start, Gaurav. Gaurav will give the answer. शुभ ने पॉजिटिव इफेक्ट पता, पहली बात तो ये इंडिया की इकोनॉमी में इतना बड़ा इफेक्ट कोरोना वायरस का नहीं पड़ने वाला। जो ये कह रहे गवर्नमेंट को एक बहाना मिल गया इकोनॉमी जो हमारी स्लो डाउन चल रहा था उसको छुपाने का। मोदी जी ने तो अनाउंस किया था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई सुन तो ले, बता रहा हूँ। Now, yes, take your turn. कोरोना आने से पहले जब हमारा बजट आया तब हमारी जीडीपी 5% पे चल रही थी और 4.5% ग्रोथ रेट के हिसाब से। और जो इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि हमारी अगले फाइनेंशियल ईयर तक हमारी जो हमारी कोशिश होगी अचीव करने की वो होगी 6% ग्रोथ रेट। और उससे अगले महीने हमारी जीडीपी 4.5 पे आ चुकी थी। तो हमारी इकोनॉमी तो पहले ही डाउन थी। तो गवर्नमेंट को एक बहाना मिल गया कि अपनी नाकामी छुपाने का, कोरोना वायरस पे मटने का सारे इल्जाम की कोरोना की वजह से हमारा वो इंडिया में कोई ज्यादा बड़ा नहीं पड़ेगा। कोरोना से इकोनॉमी का इफेक्ट पड़ेगा। वो गवर्नमेंट की जो खराब नीतियां होंगी उससे अफेक्ट पड़ रहा है। कोरोना से इतना बड़ा मतलब नहीं, मैं ये नहीं बोला कि नहीं पड़ेगा, लेकिन इतने बड़े उस पर नहीं पड़ेगा जो डेवलप्ड कंट्रीज में पड़ता है। अमेरिका में जितनी हमारी जीडीपी जितनी आज हमारी 2.9 आप देखेंगे लॉस में जा चुका है अमेरिका। आप देखेंगे कि गवर्नमेंट गौरव अगर अभी आप फिलहाल में देखेंगे तो जो मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉई है मैक्सिमम उनका या तो सैलरी रोक दिया गया, फिर एक दिन का सैलरी काटा जा रहा है। उसका कोई इफेक्ट क्या आप प्रकाश डालेंगे क्या? Would you like to put light on them? Yes, Gaurav, please continue. 20% तक गवर्नमेंट किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में काट सकती है, लेकिन 20% से ज्यादा काटना हो उसके लिए गवर्नमेंट को पहले फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करना पड़ेगा। और अगर ये करती है तो ये केस कोर्ट में भी जा सकता है अगर इससे ज्यादा। लेकिन सरकार का सैलरी स्टॉप करने के बारे में गवर्नमेंट जो सैलरी स्टॉप की है मैक्सिमम गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, जैसे टीचर्स हो गए, लेक्चरर्स हो गए एंड ऑल, उनकी सैलरी पूरी तरह से स्टॉप हो गई। बिकॉज मैं अगर आप बात करें मेरे घर की तो मेरे छोटे भाई साहब है, माय यंगर ब्रदर इज इन झारखंड पुलिस एंड ही सैलरी हैज बीन स्टॉप्ड बाय द गवर्नमेंट एंड नॉट ही इंटायर गवर्नमेंट पुलिस जो झारखंड पुलिस है वो पूरी की सैलरी बंद कर दी गई है। तो उसे सरकार को क्या फायदा मिलने वाला है? मेरे फादर भी पुलिस में है और उनकी भी सैलरी लेट हुई है, मतलब अभी तक नहीं आई है। तो लेट कर सकते गवर्नमेंट, इसमें कोई 3 महीने से नहीं आई है गौरव, लास्ट 3 मंथ से। लेकिन ये पर्सनल बात है, आई डिडंट लाइक टू गो विद द पर्सनल। बट आप तो पॉजिटिव इंपैक्ट पूछ रहे हो ना, ये तो आप खुद ही अब नेगेटिव। पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका नेचर पे है, एनवायरनमेंट पे है और लिबरेटेड वाइल्ड लाइफ हमारा जो हो गया है। आप खुद ही देख सकते हैं आपका पीएम लेवल जो आपका वो था, आपका एयर क्वालिटी में बहुत रिड्यूस हो गया है। नाउ यू कैन ब्रीथ फ्रेश एयर, इज मोर क्लियर, द ओजोन लेयर इज आल्सो हीलिंग। Right. So I think we should continue with the next question. And the next question is, as the WHO Director Tedros has given the statement that the worst is yet to come. तो इससे मतलब उन्होंने अवेयर कर दिया है कि अभी इससे भी बुरे हालात जो है वो बन सकते हैं। बिकॉज एवरी कंट्री इज थिंकिंग अबाउट दैट कि लॉकडाउन जो है वो खत्म कर देना चाहिए। अमेरिका में तो एंटी लॉकडाउन प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें आज़ादी चाहिए, दिस इज आवर फ्रीडम, कि आप हमें कैसे अंदर रखें। तब जब एक वायरस जो कि एक फ्लू है जो कि जिससे और भी ज्यादा लोग मतलब जैसे सिंपली फीवर हो जाता है उससे भी लोग मरते हैं, तो हम अपने वर्क को जिससे हम प्यार करते हैं तो उसको हम क्यों जो है स्टॉप करें। Yes, we will continue with the series. Yes, first of all, Pratyusha. मैम जहाँ तक WHO की अवेयरनेस की बात करें तो उन्होंने जरूर कुछ मतलब एग्जामिन करके ही कहा होगा कि मतलब कुछ तो होगा। जैसे अगर पीपल का अवेयरनेस नहीं रहा तो शायद ये लॉकडाउन आगे चल के इसलिए कहा था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है और फर्स्टली उन्होंने पैंडेमिक घोषित करने में इतना डिले कर दिया, तो वो भी उन्होंने कुछ एग्जामिन कर फर्स्ट इफेक्ट हमें देखने को मिले। यस मैम, WHO ने इसे पैंडेमिक घोषित करने के लिए लेट इसलिए किया था क्योंकि
उन्होंने शायद एज्यूम किया होगा कि जैसे इबोला वायरस भी जब फैला था तब वो कंट्री टू कंट्री नहीं फैला था, वो सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज में ही फैला रहा। सो आई थिंक उस वक्त उसने उसमें लेट नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसने उस चीज को भी एग्जामिन किया था। लेकिन और अभी जो अवेयरनेस की बात की गई है तो वो भी अवेयरनेस सही है, बस लोगों का प्रोटेस्ट करना लेकिन गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्हें भी समझना चाहिए कि अगर वो एक बार अगर जैसे कि हम कहे वोल्केनिक इरप्शन होता है, अगर ये वायरस भी अगर मतलब फटे चारों तरफ और भी फैल जाए तो शायद वो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए ही ना बचे। सो ये उन्हें शायद समझना चाहिए, और प्रोटेस्ट आई थिंक ये बहुत गलत होगा। Okay. Yes, Sapna. Is it audible to you? Just wait. Mute किया हुआ है आपने सपना? यस मैम, हाँ, ये WHO का बिल्कुल सही डिसीजन है, क्योंकि हमारी इसी में है कि हम घर पर ही रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि अगर जैसे वो अमेरिकन है, उनको बाहर जाना है तो इसमें फिर वो वायरस से बच नहीं पाएंगे, और अगर हमको घर पे रहना है, अगर इसके लिए हमको थोड़ी प्रॉब्लम भी हो तो हमारी सेहत के लिए तो ठीक ही है ना। right. And yes, who is next? Archit? Yes, ma'am. Ma'am, actually, this statement was a purely, we can say that was a partially beneficial statement for the citizens of all over across the globe, and secondly, it was also a diplomatic statement, since we all know that what is the reach of this virus, and the outbreak is still at very large, and when people are not hearing of this highly pandemic virus, it is obviously going to affect at a very much larger scale. So that's why he said that the virus is the worst is yet to come, because unless and until people took it very serious to that up to that level, they are not going to बाकी they are सब not म्यूट going कर दीजिए अपने अपने उसको। Archit, Yes, ma'am. is it audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, बाकी ma'am. सब म्यूट कर दीजिए। But your video is not there, Archit. Ma'am, it has to be. There might be some internet problem. Yeah, right. सो मैं यही कह रहा था कि जैसा कि उन्होंने कहा कि द वर्स्ट इज येट टू कम, वो इसीलिए उन्होंने कहा था क्योंकि पीपल आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली। जब तक उसको सीरियसली नहीं लेंगे तब तक उसका जो आउटरीच है वो और एक्सपैंड होता जाएगा, एंड द इकोनॉमीज विल टोटली गेट डिवास्टेटेड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये वायरस अक्रॉस द बॉर्डर कैन रैपिडली इंक्रीज, जो भी इन्फेक्ट हो सकता है, तो उसका कोई भी तक हमारे पास कोई भी वैक्सीन नहीं है, तो हमें उसको और ज्यादा स्ट्रिक्टली रहना चाहिए। बेसिकली उनका मेन मोटिव यही था स्टेटमेंट के पीछे, so that people start taking it more seriously. Otherwise that particular statement that worst is about to come will be proved. Okay. And yes, Nitesh, what are your views on this? यस मैम। Video मैं is पहले तो not मैं ये कहूँगा कि visible. मैं एम आई विजिबल? Yes, continue. ओके मैम। मैम पहले तो मैं ये करूँगा कि WHO ने जो ये पेंडेमिक घोषित करके इसको बोला है कि ये वैश्विक महामारी है, तो ये सब कैसे सोच के ही इन्होंने बोला होगा ना। सब जगह देखा होगा कि किस किस देश में सबसे ज़्यादा बीमारियां फैल रही है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो अगर हम पहले अमेरिका की बात करें, क्योंकि अमेरिका में लॉकडाउन अगर घोषित किया पर वहाँ पे लोग तो भी इसको सीरियसली नहीं ले रहे थे, और रिजल्ट डे बाय डे हज़ारों में केसेस बढ़ रहे थे। और अगर हम आज की दुनिया में देखें तो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज जो है वो अमेरिका की, और वहीं अमेरिका की फौज के सबसे ज़्यादा कोरोना केसेस हैं। और वहीं हम अगर इंडिया की फौज की बात करें तो इंडिया में इतने नहीं है। पर अगर ये चाइना की देखें तो चाइना ने 2 महीने तक लॉकडाउन लगाया था, और 2 महीने बाद जब उन्होंने लॉकडाउन खोला तो उन्होंने फिर से उसी तरह से उसी स्पीड में काम करना स्टार्ट किया, और उन्होंने वही पुराने वाली इकोनॉमी बनाने की स्टार्ट किया। सही नहीं है। उनका जो उन्होंने बताया है नंबर ऑफ केसेस वो सही नहीं है, ये बहुत बार प्रूव हो चुका है। कैन ट्रस्ट ऑन दैट। यस मैम, वो यस मैम, वी कैन नॉट ट्रस्ट ऑन दैट, बिकॉज मैंने भी सोशल मीडिया में देखा उन करोड़ों के हिसाब से डेथ हुई थी, पर तो भी उन्होंने एक तरह से लॉकडाउन तो चलाया। और इंडिया में भी तो लॉकडाउन लगा है, तो भी यहाँ पे पालन कर रहे हैं लोग, पर अमेरिका में वो नहीं कर रहे हैं। तो जो WHO ने भी पूरे दुनिया में लॉकडाउन बनाने के लिए बोला है, तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना, ऐसे तो नहीं बोला होगा उन्होंने।
तो लॉकडाउन को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। Yes, Gaurav, what are your views on this? सबसे बड़ा वॉलंटरी जो ये कोरोना वायरस पेंडेमिक में हुआ, सबसे बड़ा WHO ने ही किया है। तो सबसे बड़ी गलती WHO की रही है। और जो अमेरिका ने WHO की फंडिंग बंद की, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि उसने चाइना को फेवर किया। 31 दिसंबर को पहला केस आया था, 5 जैन को पहली डेथ हुई थी, और 15 जनवरी को जो आउटसाइड चाइना पहला केस देखने को मिला था। उसके बाद हम 30 तारीख को आए, 30 तारीख तक इंडिया में भी पहला केस आ चुका था, और जो चाइना से बाहर लगभग 38,000 केस हो चुके थे इसके कोरोना वायरस के। चाइना से बाहर पूरे 38,000, लेकिन 30 तारीख को आगे तब भी WHO ने कोई पेंडेमिक घोषित नहीं किया, वो भी वर्ल्ड इमरजेंसी घोषित किया था, पेंडेमिक तब भी घोषित नहीं किया कोई। Yes. उसके बाद पूरी फेब चली गई, और 11 मार्च को आगे पेंडेमिक घोषित किया WHO ने। तब तक 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर केस जा चुके थे वर्ल्ड वाइड, और डिले कर दिया। 40,000 डेथ हो चुकी थी उसके बाद। Yes, Naman? मैम, अगर मेरा व्यू देखे तो जो WTO की जो स्टेटमेंट आई है वो एक पूरे स्टैटिस्टिकल स्टडी पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने पास्ट में भी देखा है कि हर 100 साल में ऐसा एपिडेमिक हुआ ही है। 1820 में प्लाग, 1920 में कॉलेरा, और अब ये कोरोना वायरस। और इसकी अगर एक और वो देखे पैटर्न, तो लास्ट के अंदर केसेस हमेशा बिगड़े ही हैं। तो शायद एक रे ये भी निकल के आती है कि हम बहुत क्लोज हैं इस कोरोना के खत्म होने के। पर अगर WTO ने लॉकडाउन का ये कहा है, वो इसलिए ये कहने में उनको काफी लेट लग गई कि ये एपिडेमिक डिजीज है, क्योंकि अगर वो थोड़ा सा स्टडी करते, थोड़ी सी डिराइव करे, तो उन्हें पता चल जाता कि ये होना सर्टेन ही है। अगर लॉकडाउन थोड़ा सा पहले हो जाता तो शायद इंडिया के अंदर भी इतने केसेस ना होते, और ना ही इटली में होते। ये थोड़ी सी गलती रही, बट एक इंडिविजुअल को खुद ही समझना चाहिए कि गवर्नमेंट हमेशा उनके सर पे डंडा लेके नहीं चली जा सकती ना। मैम कुछ कहना चाहेंगे मैम? क्या हमें नहीं लगता कि जो WHO है उसने चाइना को ज्यादा फेवर किया, वो ये कोरोना को लेकर के, ऐसी महामारी घोषित करने को लेकर के? समय भी डेथ हो रही थी, जा रहा है। शायद उसके पहले चाइना के जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, उनकी हुई आके WHO के प्रेसिडेंट के साथ। तो मैम क्या हमें तो जहाँ तक लगता है मैम कि इसने चाइना को सपोर्ट किया है। इसके बाद अगर अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा उसने अगर कोई कंट्री ने फंडिंग की है, वो चाइना है WHO में। तो मैम इसके कारण जहाँ तक मुझे लगता है मैम, इट हैज फेवर्ड। Okay. And who is next? Who is left? Yes, Archit, I think आपका सुना नहीं था, तो I think आप दोबारा से बता सकते हैं on this? Yes, मैं ये कहूँगा जैसे कि बताया कि चाइना का फेवर कर रहा है WHO, तो उसके लिए गौरव ने बहुत सही बताया कि जब US ने चाइना की फंडिंग रोक दी थी, उसके पास रिसोर्सेज नहीं थे, उसके पास रिसर्च करने के लिए उसके पास फंड नहीं था, एंड एट दैट टाइम चाइना ने उसका हेल्प करा था। एंड इफ अगर चाइना के वहाँ पर कोई वायरस का आउटब्रेक होता है और वो थोड़ा सा उनसे टाइम मांगता है कि दैट वी आर टैकलिंग इट, वी आर रिसर्चिंग ओवर इट, वी आर डूइंग टू कर्ब इट, तो देयर वाज नथिंग रॉन्ग अगर WHO ने उसका साइड लिया था। Just let him complete the point and then Shubham will come to you. Yes, Archit, continue. अगर आपके लेट्स एग्जांपल, हम ह्यूमन जो होते हैं वो रैशनल पर्सन होते हैं। अगर आपको एक पर्सन मनी देने के लिए मना करता है और अगर दूसरा पर्सन एट दैट पर्टिकुलर टाइम आपको फंड देता है, तो देयर इज नो वंडर कि आप उसका पार्शियली बायस करेंगे एट एनी सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट WHO एंड चाइना डिड विद ईच अदर। दैट्स बिकॉज ऑफ ओनली USA. Yes, Shubham. मैम एक्चुअली आई थिंक कि मैम उसने जो चाइना ने जो किया, वो जो मतलब अमेरिका ने फंडिंग रोका, वो तो बाद में रोका, उसके पहले थोड़ा ही ना रोका था। जब उसने लेट लगाई और उसके बाद सारे गवर्नमेंट
मैं मैक्सिमम जो कंट्रीज मैक्सिमम नेशन है वो चाइना से जवाब मांग रहे, इवन चाइना पीपल अलाउ ही नहीं कर रहे दूसरे रिसर्चर को कि उनके कंट्री में आकर के और उस वायरस के ऊपर रिसर्च करे। तो मैम इससे ये नजर इसका कोई सोल्यूशन जल्दी निकल नहीं पा रहा है। इवन चाइना ने ये भी नहीं क्लियर किया, पहले तो उसने बताया कि सी फूड मार्केट से हुआ, इसके बाद फिर अपना स्टेटमेंट बदल के उसने बोला कि ये क्या लेबोरेटरी में बना हुआ है, चाइना ने, ये यूएसए के रिसर्चर्स ने कहा। तो मैम एक्चुअली इसका एक अप्रोप्रिएट कंक्लूजन नहीं निकल पाया है कि मैम आखिर ये कैसे फैला हुआ है। आई थिंक Yes, Gaurav and Aman, you want to say anything? Yes, ma'am. Yes, Gaurav. जैसे अर्चित ने बोला कि चाइना वो यूएस ने फंडिंग रोक दी थी, फिर चाइना ने कि भाई यूएस ने फंडिंग बाद में रोकी है। जैसे मैंने पहले डिबेट में बताया था, चाइना जो परसेंटेज शेयर हो 51% है इस बार का WHO की फंडिंग में। और जो WHO प्रेसिडेंट है, जो उसकी कंट्री है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट वर्क कर रहा है चाइना। उस वजह से दबाव में आके जो गलत डिसीजन लिए हैं या गलत स्टेटमेंट्स प्रोवाइड किए हैं। अब जो जब 1 लाख से ऊपर केस हो चुके थे वर्ल्ड वाइड, तब भी WHO का ट्वीट था कि ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है। और ये जो पहले चाइना की स्टेटमेंट थी, चाइना स्टेटमेंट आने के बाद WHO ने स्टेटमेंट दी थी, इतने बड़े लेवल पे फैलने के बाद भी। यूएस ने तो फंडिंग अब रोकी है 1 हफ्ता पहले, और यूएस की फंडिंग रोकने के बाद अब कल नहीं परसों चाइना ने $30 मिलियन फिर से फंडिंग की है WHO को। Right. मैम आई एग्री विद गौरव मैम। Yes, that I truly accept. ये मैं accept करता हूँ because there were other reasons also कि WHO और चाइना का जो था diplomatic tie था वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर था एज कम्पेयर टू USA एंड WHO, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंट लास्ट ईयर स्टेटमेंट दिया था कि दैट क्लाइमेट चेंज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट इज़ अ फेक, इट इज़ अ ये जो इंसानों ने ज़बरदस्ती मैन मेड बना रखा है, क्लाइमेट चेंज तो कुछ है नहीं। वो जब उनकी लाइव कॉन्फ्रेंस भी तो उन्होंने साइड के ट्रीज़ को साइड करते हुए कहा था कि यहाँ पर इतनी ग्रीनरी है तो क्लाइमेट चेंज तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। दैट्स वाई इनिशियली स्टार्टिंग से ही जो यूएस गवर्नमेंट है वो क्लाइमेट चेंज एंड दिस हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। सो दैट्स वाई उनके जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल टाइज थे वो उनके थोड़े से वीक थे एज कम्पेयर टू WHO एंड चाइना एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो। वो तो 2 साल से चल रहे हैं। जब कार्बन एमिशन पे जो मीटिंग हुई थी 2 साल पहले 2018 में, तब चाइना ने साफ साफ मना कर दिया था हम कि कार्बन एमिशन को हम डाउन नहीं करेंगे, इससे हमारी इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ सकता है। पेरिस एग्रीमेंट के टाइम पे यूएसए ने भी बैक ऑफ किया था जस्ट बिकॉज क्यों वो बिलीव नहीं करते कि ऐसा कोई चेंज भी हो रहा है। Naman, you want to say anything? यस मैम। मैम फंडिंग रुकी या नहीं रुकी इससे फर्क नहीं पड़ता, बट फंडिंग रुकी ये जरूरी था इस वक्त, क्योंकि अभी आपने देखा कि चाइना अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हाथ पांव मारे जा रहा है। उसने रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर अगर केसेस आए हो तो उन्होंने यूज चीजों के वो उनको मास्क बना के बेच दिए ताकि उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। इसी वजह से फंडिंग जरूरी हुई थी। अगर यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं और जो कि सही नहीं है, जैसे उनके किट्स जो हैं वो हर एक का ही नेगेटिव बता रही हैं, जिससे बहुत नुकसान हुआ। एग्जैक्टली। और कहीं ना कहीं शायद ये भी हो सकता है कि अगर आपने देखा हो कि कोरोना एपिडेमिक से पहले चाइना की इकोनॉमी डाउन थी। पिछले 4 सालों में ऐसा पहली बार हुआ था कि चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अकॉर्डिंग टू दी इसके पास था। मैम जो इस बार मैक्सिमम मिलियनरीज हुए वो मैक्सिमम चाइना से हुए हैं। हाँ प्लीज। मतलब मैक्सिमम Ma'am, I'm sorry, but I need to leave right now. Yes, you can leave. Don't worry. Thank you, ma'am. जितने जो मिलियनरीज थे मैक्सिमम उन लोग का जो पैसा बढ़ा वो मैक्सिमम चाइना ही के बढ़े हैं, जो बीफ मार्केट में प्रोड्यूस करते थे। और 2-3 लोग चाइना की मार्केट इंक्रीज हुई है। यस नमन भी सेम चीजें कह रहा है कि उन्होंने अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है उसको। यस नमन कंटिन्यू। यस मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम चाइनीज प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट अब मार्केट में आने लगे हैं। एक टाइम था 2015 से पहले 2016 से पहले कि हमारे पास चाइना का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं था क्योंकि उनके प्रोडक्ट इतने चीप होते थे। लेकिन अब काफी सारे न्यू प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री के अंदर, यूएस हो गया, इजराइल हो गया, इन लोगों ने वही प्रोडक्ट्स लेके आए हैं बट एक सेफर एस्पेक्ट में, जिसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी नेचुरल डाउन जाती है। और अब यही प्रोसेस रहा तो 2025 के अंदर चाइना के पास से वो चला जाएगा। इसलिए शायद एक थ्योरी ये भी है कि उन्होंने एपिडेमिक लाया और अभी उसी का यूज कर रहे हैं। Anybody else who want to say? Shubham, Harsh, you are not visible to me.
and also that Gaurav is not हाँ visible ये to me. तीसरी बात If anybody want to say, then please. I want Yes, continue, Gaurav. जैसे नमन ने बोला कि फंडिंग रोकनी रोकनी जरूरी थी, रोकनी को उससे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। और इसने जैसे ये भी बोला कि चाइना की इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही थी, तो चाइना की इकोनॉमी पिछले 20 साल से कभी स्लो डाउन में नहीं आई है। हमारी इकोनॉमी से 10 ट्रिलियन ज़्यादा बड़ी इकोनॉमी है चाइना की। 13.37 ट्रिलियन की इकोनॉमी है चाइना की, और उससे ऊपर केवल बस यूएसए है जो 23 पॉइंट समथिंग है। तो चाइना की इकोनॉमी को अब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला कोरोना वायरस से भी इंडिया और चाइना की इकोनॉमी, क्योंकि तो एशिया की बात करें हम, एशिया से यूरोप को छोड़ भी दे तो 70% जो प्रोडक्ट चाइना के सप्लाई होते हैं एक्सपोर्ट में। इतना बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है चाइना का, इंटरनेशनल मार्केट है। और इसको हम जो व्हाट्सएप पे जो ये हमारे मैसेज चल रहे हैं बॉयकॉट चाइना बॉयकॉट चाइना बॉयकॉट चाइना, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है चाइना को बॉयकॉट करना आज के टाइम किसी भी देश के लिए। Okay, Gaurav think कि ये possible नहीं है। उतना बढ़ावा देना भी तो सही नहीं है। अभी हाल में देखिए आप HDFC जो हाउसिंग कंपनी है जो पैसा देती है, उसमें चाइना ने 1% शेयर अपना बढ़ा लिया, जिससे जो बेसिक लीगल जानकारी थी उसको देना जरूरी होगा। डिपेंड होना पड़ेगा। हम इंडिपेंडेंट हैं, We can't give entire privilege to डिपेंडेंट नहीं them. हम रह सकते किसी के ऊपर। हमारे देश की गवर्नमेंट प्रोडक्शन नहीं बढ़ा रही, तो हम इसके सिवा हमारे पास ऑप्शन क्या है? इंपोर्ट करना। तो देश की गवर्नमेंट कोई स्टेप नहीं ले रही, और तो हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम कहीं से इंपोर्ट करें, और जो सबसे सस्ता इंपोर्ट होता है वो चाइना से ही होता है। Akshit, you want to say anything on this? आज के टाइम पे जो मेडिसिन की बात करें तो वो 90% मेडिसिन चाइना एक्सपोर्ट करता है। Right. वर्ल्ड का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर डिपेंडेंट। चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जाइंट है। चाइना आपका मैन्युफैक्चरिंग हब है कि अक्रॉस द वर्ल्ड उसकी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है एज कम्पेयर टू एनी अदर कंट्री इन द होल वर्ल्ड। तो उसको अब किसने सोचा ही नहीं पहले इस चीज के बारे में। अभी जैसे ट्रम्प है वो बहुत सारी कंपनीज को मूव कर रहे हैं अदर कंट्रीज में। जापान ने, जैसे कि जापान ने भी एक स्टेप लिया है रिसेंटली, उन्होंने अपनी कंपनी वहाँ से चाइना की सारी कंपनीज को सस्पेंड टेम्परेरी उन्होंने कहा है कि हम यहाँ से कंपनीज को निकाल रहे हैं, हम चाइना के साथ ट्रेड थोड़ा सा कम करेंगे। तो यस गौरव, व्हाई आर यू नॉट सेटिस्फाइड? आई गेस जैसे जो बात बोली है कि चाइना ने जो जापान की कंपनीज को निकाला, जापान ने केवल वही कंपनीज अपने वापस बुलाई हैं जो लॉस में चल रही थी, इसलिए कि चाइना उन पे टेक ओवर ना कर ले, जो प्रॉफिट में चल रही है। एग्जैक्टली ये जापान का बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक स्टेप था, जिसको मतलब जो इन्होंने रियल इमेज हमारे आगे दूसरी दिखा है, उसका दूसरा एक्शन जो इनका मोटिव है वो दूसरा है। उन्होंने इनिशियली स्टार्ट उससे करा कि हमारा लॉस से है। प्रॉफिट वाली कंपनी तो निकाल भी नहीं सकते भाई, कैसे निकाल लेंगे? I guess anybody else who want to say? Aman? Yes, Shubham, you want to say anything on this? No, ma'am, I agree with Gaurav. Okay, so I think we should stop here because 1 घंटे का डिस्कशन हो चुका है ऑलमोस्ट, एंड दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग कि आप सबने एक दूसरे को क्वेश्चंस जो हैं वो किए, तो धीरे धीरे काफी चीजें इंप्रूव हो रही हैं। एंड नमन वाज देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सपना वाज देयर फॉर द एंड शुभम वाज आल्सो देयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो आई होप कि आपको जो है बहुत अच्छा लगा होगा, एंड टुडे आई विल सेंड यू अ फीडबैक फॉर्म फॉर दिस, आप उसको भी फिल कर सकते हैं, राइट? Okay. Was it good experience for all of you? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, your voice not coming clear. Yes, my audible and visible to everyone? It's audible नहीं है. I am asking you that was this all discussion was useful for you, and was you find some experience or something you can share with us? Okay, ma'am. मैं तो बताया कि हर बार कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता हूँ, क्या बताऊँ, और इसी डिस्कशन के चलते
Yes, Sapna. Your voice is not audible, Shubham. Yes, Sapna. Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, तो चलिए इसको यहीं पे stop करते हैं and we will come with the next discussion with the new topic. Thank you so much and have a nice day. Now you all can leave Thank the you, ma'am. this call. Okay, Okay, ma'am. ma'am. Bye. Thank you so much. Thank you, ma'am. Bye, ma'am.